Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for delivering a lecture on hydraulic jump, Unit 6, Module 6, Lecture number 5. Okay, so I already made some previous lecture about open channel flow. Now the topic is hydraulic jump. This is also very important topic examination point of view and generally comes in the exam. So okay, I will start with hydraulic jump today. So let me start with what is hydraulic jump. Okay. Okay, so whatever I am showing you, you may write on your notebook first. Okay, because these are very important critical portion, and you can write out a very short note from this PDF, from this notes. Okay, so what is hydraulic jump in a channel? The hydraulic jump is defined as the rise of water level which takes place due to transformation of the unstable shooting flow supercritical to the stable streaming flow. हाइड्रोलिक जंप कब होती है? आप किसी चैनल में वाटर फ्लो कर रहा है और वाटर का लेवल सडनली राइज कर जाता है ड्यू टू सम आप ऑब्स्ट्रक्शन बीच में कोई ऐसा कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उसकी वजह से वाटर का जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है और जो फ्लो है दैट कम्स फ्रॉम अ सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल रीजन then the hydraulic jump occurs. When hydraulic jump occurs, a loss of energy due to eddy formation and turbulence flow occurs. जब भी हाइड्रोलिक जंप होती है तो वहां पे एक एडी फॉर्मेशन मींस वो जो जोन है, वो जो एरिया, वहां पे टर्बुलेंस हो जाता है, पूरी तरीके से जो एनर्जी होती है वो लॉस होने लगती है और वहां पे टर्बुलेंस वाली कंडीशन आ जाती है. जैसे आपने बाउंड्री लेयर का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपने देखा था उस पर्टिकुलर ऑब्सेशन की वजह से, उस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल की वजह से वहां का पूरा एरिया टर्बुलेंस जोन में कन्वर्ट हो जाता है. सो द सेम थिंग इज हैपेंड इन दिस concept. So this is hydraulic jump. Okay. Okay. So you may write down these 2 points. आप सुपर क्रिटिकल के लिए क्लाउड नंबर को ग्रेटर देन 1 लेके चलते हैं और सब क्रिटिकल के लिए इसको लेस देन 1 लेके चलते हैं. तो आप जब देखते हैं कि आपकी वेलोसिटी ड्यू टू सम रीजन सडनली राइज कर रही है तो वहां पर हाइड्रोलिक जंप की कंडीशन हो जाती है. ओके. So this is the definition of hydraulic jump. आप ऐसे for example suppose there is a weirs on the river. एक नेचुरल स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल स्ट्रीम जिसे हम ओपन चैनल फ्लो में कंसीडर करते हैं, उसमें अगर बीच में कोई स्लाइजिंग गेट या फिर वियर्स स्ट्रक्चर अवेलेबल है, then there will be some hydraulic jumping condition when the velocity of that particular area which is surrounded by that particular obstruction is having hydraulic jump. And what does it significance, why we are studying this hydraulic jump, that I let you know again further. Okay. Okay, so this is hydraulic jump. Now you can draw this figure. ठीक है, आप इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज दिस इज अ चैनल, इट्स हैविंग सम नैरो portion where the depth is this or the channel shape is like this. When the water is flowing from this channel with a particular dense velocity, and due to some change in the shape of the channel also, and due to some obstacle, there is a hydraulic jump condition. This zone having hydraulic jump. So supercritical flow where we take cloud number as greater than 1, and hydraulic jump इस कंडीशन में हो रही है. सब क्रिटिकल फ्लो वेयर वी टेक क्लाउड नंबर इज लेस देन 1. ओके, तो यहाँ पे अगर हम डेप्थ को d1 कंसीडर करते हैं, यहाँ पे डेप्थ को हम d2 कंसीडर करते हैं, then we can find out this d1 and d2 with the help of this hydraulic jump and energy loss.
आप इस पर्टिकुलर चैनल में देखिए तो जिस एनर्जी से पानी फ्लो हो रहा था वो एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी डेप्थ ज्यादा है क्योंकि शेप बड़ा विड्थ ज्यादा है उस चैनल की, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी होगी फ्लूइड की वो क्या होगी एज कंपेयर टू दिस पोर्शन इज वेरी लेस। ओके, so you may draw this figure for the explanation of hydraulic jump. ठीक है, इसके बाद so this is the hydraulic jump. Now आप पहले इसकी बेसिक चीजें पूरी थ्योरी हम ले लेते हैं. So what are the uses of hydraulic jump? You may write down this on your notebook also. So what are the uses of hydraulic jump? Hydraulic jump is used to dissipate or destroy the energy of water where it is not needed, otherwise it may cause damage to the hydraulic structure. कभी कभी किसी भी स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोलिक जंप की कंडीशन को खुद क्रिएट करते हैं फॉर मिनिमाइजिंग द एनर्जी. मीन्स आप पानी जिस एनर्जी के साथ, जिस डेटम हेड के साथ फ्लो कर रहा है उसकी एनर्जी को हमें कम करना है, क्योंकि sometimes it affects adversely to the supporting structures, so we have to reduce the dissipating energy. Okay, so this is the first point. Second point is it may be used for mixing of certain chemicals, like in case of water treatment plant. आप ऐसे समझिए कि कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग चैम्बर के थ्रू पानी को फ्लो कराया जाता है. तो पानी जिस एनर्जी से उस पर्टिकुलर चैनल में फ्लो कराते हैं, किसी समय पे उस पर्टिकुलर पानी की डिसिपेशन को रोकना होता है, क्योंकि हमें टाइमली उसमें कुछ केमिकल्स को ऐड करना होता है. तो दिस इज यूजफुल फॉर दैट पर्पस ऑल्सो. थर्ड इज इट मे ऑल्सो बी यूज एज डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस. हाइड्रोलिक जंप को आप डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस की तरह भी यूज कर सकते हैं. कैसे? डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस से क्या मतलब है आपका? डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस से मतलब है कि किसी चैनल से पानी फ्लो कर रहा है, अब आप वो जिस वेलोसिटी और जिस कांटेक्ट एरिया से फ्लो कर रहा है उससे आप डिस्चार्ज को निकाल सकते हैं. लेकिन अब अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो मे बी वहां पे एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो उस स्ट्रक्चर को डैमेज करे. ठीक है, आप हाइड्रोलिक जंप की कंडीशन जब क्रिएट करते हैं तो पानी कहीं टर्बुलेंट होने लगता है. टर्बुलेंट होने लगता है, उस पर्टिकुलर टाइम में आप उसको कलेक्ट करके उसका डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर कम्स अंडर द यूज ऑफ हाइड्रोलिक जंप. So what type of question is asked in the exams, like what is hydraulic jump, what are the use of hydraulic jump? These are the common questions. So you may write down these 3 examples. Okay, now this is also very important figure. You may draw this first on a notebook. This is a channel. Suppose water is flowing from this side and this is a sluice gate. What is sluice gate? Sluice gate is nothing but it's a sliding gate. It's like a obstacle. आप सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है यहाँ पे पानी का, सडनली एक स्लाइडिंग गेट आता है, ये पानी का जो सब क्रिटिकल फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है. तो फिर स्मूथली वाटर फ्लो हो रहा है. अगेन फिर यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल आया या उसका जो शेप है या जो विड्थ है वो बढ़ी, तो यहाँ पे फिर हाइड्रोलिक जंपिंग की कंडीशन हो जाती है. यहाँ पे विड्थ चेंज हो रही थी, ये डाउनवर्ड स्लोप हो रही थी, यहाँ पे अपवर्ड स्लोप हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप की कंडीशन होती है. फिर से सब क्रिटिकल फ्लो एक प्रॉपर स्मूथ वे में पानी फ्लो करने लगता है. फ्लो अंडर अ स्लाउस गेट एक्सेलरेट फ्रॉम सब क्रिटिकल टू क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल एंड देन जंप बैक टू सब क्रिटिकल फ्लो. आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि फ्लो अंडर अ स्लाउस गेट एक्सेलरेट फ्रॉम सब क्रिटिकल टू क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल देन जंप बैक इनटू सब क्रिटिकल फ्लो. Okay, I already discussed about critical flow, subcritical flow and supercritical flow in my previous lecture. Okay, now this is very important classification of hydraulic jump.
आप इसको भी कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप? इसको हम क्लाउड नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज क्लाउड नंबर, व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर, व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ दीज पैरामीटर्स। सो क्लाउड नंबर, if cloud number is 1 to 1.7, undular jumps is category 1. if cloud number 1.2 to 2.5, weak jump की कंडीशन होती है। ठीक है, अब क्लाउड नंबर की जो वैल्यूज है वो आपकी वेलोसिटी और एरिया पे, उसकी विड्थ ऑफ द चैनल पे डिपेंड करती है। तो आप ये पांचों ध्यान रखेंगे। when cloud number is 2.5 to 4.5 is oscillating jump, ठीक है। cloud number is 4.5 to 9 steady jump, cloud number is greater than 9 is strong jump, ठीक है। तो जो जंप का जो अमाउंट है, जो कंडीशन है, वो भी उस पानी में जब वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी और ऑब्स्टिकल किस तरीके का है और उसका विड्थ एरिया क्या है, उस पे आपका ये डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसमें देखिए ये चैनल है जहाँ की विड्थ जो डेप्थ है वो y1 है, ये y2 है। यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा, बाउंड्री की साइड टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है। आप इसमें देखिए यहाँ पे बाउंड्री साइड में टर्बुलेंस की कंडीशन अलग है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। If we write down this, I will go further. This is also the same thing, classification. There I told you in short, you can write down this detail. Cloud number is less than 1, jump impossible. Boylan's second law of thermodynamics. ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्लाउड नंबर अगर आपका 1 से कम है तो जंप नहीं होती, वहां पे कितना भी ऑब्स्टिकल आ जाए पानी एनी हाउ उसके सराउंडिंग से पास हो जाता है फर्दर। ओके, सेकंड पॉइंट, cloud number 1 to 1.7 standing wave undular jump about 4y2 law, 4y2 law, low dissipation less than 5%, ये आपको ध्यान रखना है। क्लाउड नंबर अगर आपका 1.7 से 2.5 है तो स्मूथ सरफेस राइज विद स्मॉल रोलर नोन एज वीक जंप, डिसिपेशन 5 to 15%। यहाँ पे जो एनर्जी लॉस है वो सारे में होगा, किसमें कितना हो रहा है, दैट यू हैव टू लर्न, you have to do remember 5 to 15% in the case of weak jump। जब वीक जंप हो रही है उसमें आपका इतना एनर्जी लॉस हो रहा है। क्लाउड नंबर अगर आपका 2.5 to 4.5 है तो अनस्टेबल ऑसिलेटिंग जंपिंग होती है, वाइब्रेशन होते हुए फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करते हैं। each irregular pulsation creates a large wave which can travel downstream from miles, damaging कि downstream from miles, this is an example of live open channel like river की अगर बात कर रहे हैं, damaging earth bank and other structure, not recommended for design condition। dissipation यहाँ पे जो होता है वो बढ़ जाता है। oscillating jump की कंडीशन में 15 to 45% इतना हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप का एनर्जी लॉस कंसीडर करते हैं। इसके बाद if cloud number is 4.5 to 9, stable and well balanced steady jump, ठीक है। क्लाउड नंबर की वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ पे स्टेडी जंप होती है। बेस्ट परफॉर्मेंस जंप बहुत ज्यादा हाइट पर होती है और सडनली वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगा। जो डिसिपेशन है वो यहाँ पे 70% तक हो जाता है आपका। ओके, क्लाउड नंबर अगर 9 से ज्यादा है, if it is greater than 9, rough somewhat intermittent strong jump but good performance dissipation is up to 85%। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। these are some standard values और ये एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स के बेसिस पे देखा गया है कि हमारा जो एनर्जी लॉस होता है वो कितना 85% तक हो जाता है। okay? Class, this is a class।
classification of hydraulic jump. This I already told you. Now, if we will talking about the application of hydraulic jump, this is also very important, and these 4 points you have to write on your notebook. First, usually hydraulic jump reverses the flow of water. This phenomenon can be used to mix chemical for the water purification. आप इसके लिए जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमेशा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या जो सीवेज प्लांट होते हैं उनका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमें टाइमली जो रिटेंशन, एक पर्टिकुलर रिटेंशन टाइम में जो आपके चैम्बर्स होते हैं उनमें केमिकल्स को मिक्स करना होता है फॉर ट्रीटिंग द वाटर. तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पे जहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल बीच में आप कोई स्ट्रक्चर आपने स्क्रीनिंग के लिए बनाया है, हाइड्रोलिक जंपिंग की कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है पानी बैक वॉशिंग हो जाती है. बैक वॉशिंग जब होती है तो वहां पे हम केमिकल प्रॉपर्ली ऐड करने के बाद वो बैक वॉश हो जाता है, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया. सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोलिक जंप यूजुअली मेंटेन द हाई वाटर लेवल ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड. हमेशा क्या होता है कि हाइड्रोलिक जंप जो होता है ना, जब किसी स्ट्रीम में आप देखेंगे तो डाउनवर्ड साइड में उसका वाटर लेवल बढ़ा हुआ होता है. क्यों होता है ऐसा? कि बीच में जब हाइड्रोलिक जंप हुई इसके बाद उसकी जो एनर्जी लॉस हुई फिर वो अपनी एनर्जी को मेंटेन करता है. वाटर फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को मेंटेन करते जब फ्लो करते हैं तो डाउनवर्ड स्ट्रीम पे इसका लेवल राइज हो जाता है. दिस हाई वाटर लेवल कैन बी यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस. उस समय उस पर्टिकुलर लेवल को किसी कैनाल ब्रांच के थ्रू हम निकाल के इरिगेशन पर्पस से भी यूज कर लेते हैं. द सेकंड पॉइंट यू टू रिमेंबर. व्हाट इज थर्ड वन? Hydraulic jump can be used to remove the air from the water supply in sewage line to prevent the air loss. बिल्कुल ठीक है. हाइड्रोलिक जंप को हम यूज करते हैं एयर और वाटर टू रिमूव द एयर फ्रॉम वाटर सप्लाई इन सीवेज लाइन्स. आपने देखा कि अंडरग्राउंड बहुत सारे सीवेज लाइन या वाटर पाइप्स हैं. ठीक है, हाइड्रोलिक जंप जब सडनली होता है तो एनर्जी लॉस होता है. उस एनर्जी लॉस के ड्यूरेशन में उस जोन से हम एयर को एक्सपेल आउट, एयर रिलीविंग वाल्व्स के थ्रू उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के थ्रू एयर को रिमूव करते रहते हैं. तो दिस इज आल्सो टू प्रिवेंट द एयर लॉकिंग. एयर के अंडर एयर लॉकिंग होने की वजह से जो फ्लो में जो रुकावट आती थी उसको भी हम उस प्रॉब्लम को भी हाइड्रोलिक जंप की हेल्प से रेक्टिफाई कर सकते हैं. What is fourth point? It prevents the scouring action on the downstream side of the dam structure. ठीक है. So what does it mean? It prevent scouring action. जो scouring जो erosion वाली जो condition होती है downstream side में, क्योंकि पानी अगर कम वेलोसिटी से आके उस सरफेस को बार बार टच करता है तो उसके मटेरियल को एडवर्सली इफेक्ट करता है. तो स्काउरिंग की कंडीशन डाउनस्ट्रीम साइड में हर एक चैनल में देखी जाती है, जिसे भी हम प्रिवेंट करने के लिए वहां पे हाइड्रोलिक जंप की कंडीशन को देखते हैं. तो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप. ठीक है. These are the 4 application of hydraulic jump. Now, location of hydraulic jump. The most typical cases for the location of hydraulic jump are below control structure like piers, slides are used in the channel. जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी रिवर में बीच में बियर्स है या कोई स्लाइडिंग गेट है, कोई आपकी रिवर है उसकी जो डैम कनेक्टेड है उसमें जो स्लाइडिंग गेट्स है वहां पे हाइड्रोलिक जंप की कंडीशन आती है. क्योंकि जब पानी फ्लो करता है तो उसकी एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा होता है. स्लाइडिंग गेट के अराउंड उसकी एनर्जी लॉस होता है, हाइड्रोलिक जंप होती है, वो स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है. सो दिस पॉइंट यू डू रिमेंबर. Now the second one is when an obstruction is found in the channel. Obviously बात है किसी भी चैनल के बीच में कोई किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां पर हाइड्रोलिक जंप अकर होती है. थर्ड, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था कि शेप चेंज होता है, मतलब स्लोप चेंज होती है. चैनल एक पर्टिकुलर स्लोप में है फिर वहां पे चेंज होता है. जैसे आप फॉर एग्जांपल कैनाल को समझिए, कैनाल में पानी फ्लो कर रहा है
फिर जहाँ फॉल आता है फिर पानी फ्लो कर रहा है तो वहां पे स्लोप हो गई, वहां पे भी हाइड्रोलिक जंप होती है लेकिन वो वहां की स्काउटिंग इफेक्ट वहां नहीं हो पाता और वहां के बेड को वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर आपका शेप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रही है, तो वहां पे भी हाइड्रोलिक जंप हो जाती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एट द टो ऑफ द स्पिलवे डैम। जो स्पिलवे होते हैं डैम्स में, उनके टो पे भी हाइड्रोलिक जंप होती है। स्पिलवे क्या होता है? स्पिलवे वो स्ट्रक्चर होता है जो सरप्लस वाटर को पानी से रिमूव करता है। ओके, so these are the 4 points which comes under the location. Effect of hydraulic jump we can also study. Actually, the hydraulic jump usually acts as the energy dissipator. It clears the surplus energy of the water. जैसे मैंने आपको बताया कि डैम में पानी एक्सेस में है ड्यू टू सम एनवायरमेंटल कंडीशन, तो हम स्पिलवे के थ्रू एक्स्ट्रा पानी को निकालते हैं। स्पिलवे में पानी के टो पे हाइड्रोलिक जंप अगर होती है तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि हम जो सरप्लस पानी था, जो एक्स्ट्रा पानी था, जो स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा था, उसको हाइड्रोलिक जंप की हेल्प से बाहर निकालते हैं। So actually the hydraulic jump usually acts as the energy dissipator. It is act as a energy dissipator. ये point आपको याद रखना पड़ेगा. It is act as a energy dissipator. Second, due to the hydraulic jump, many noticeable disturbances are created in the following water like eddies, reverse flow. जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जहाँ पे भी हाइड्रोलिक जंप होती है वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है या फिर वहाँ पे बैक फ्लो होने लगता है, एक रिवर्स फ्लो होने लगता है, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम में वहां पे किसी केमिकल को ऐड कर रहे हैं। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ hydraulic jump. It is having both positive and negative effects also. Okay, now the third, usually when hydraulic jump takes place the considerable amount of air is trapped in the water. ठीक है, that air can be helpful in removing the waste in the stream that are causing pollution. जब भी हाइड्रोलिक जंप होती है तो वहां पे अमाउंट ऑफ जो एयर होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट वाटर में ट्रैप्ड होता है, और आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को जो वेस्ट है उसको कंपोज करने के लिए हमें एयर की जरूरत होती है, और उसके थ्रू जो स्मॉल बैक्टीरिया या स्मॉल इम्प्योरिटीज है एयर उसको रिमूव कर देती है और हमारे एयर पॉल्यूशन को कम करने में उसकी हेल्प करती है. This is also an effect of hydraulic jump. Now the fourth point, this one, hydraulic jump also make the work of different hydraulic structure effective like weirs, notches and flumes. Weirs में different notches का मतलब मैंने आपको बताया था different शेप जिससे हम डिस्चार्ज को डिफरेंटली अमाउंट में निकालते हैं. नोचेस और फ्लूम्स में इनको हम लोग डिफरेंटली इफेक्टिवली ये वर्क करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको लैमिनार फ्लो नहीं चाहिए, आपको टर्बुलेंट फ्लो चाहिए. उस टर्बुलेंट फ्लो का भी आप यूज करते हैं कि मे बी वहां पे एनर्जी डिसिपेटर की तरह आपका काम कर रहा है हाइड्रोलिक जंप, और वहां पे एनर्जी कम हो, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप अपने बाकी पर्पस को पूरा करते हैं. So these are the effect of hydraulic jump. Now this is our theoretical portion. So this is हमें हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालनी है, जैसे मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, द डिफरेंस ऑफ डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द जंप इज नोन एज द हाइट ऑफ द जंप. जंप के पहले जो वाटर की हाइट है, जंप के बाद जो हाइट वाटर की हाइट है, उनका जो डिफरेंस होता है वो आपकी हाइड्रोलिक जंप कहलाती है. दिस वन सपोज पहले y1 थी, अब y2 है. अब अगर हम लेंथ की बात करें हाइड्रोलिक जंप की, से मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है, इसका भी आप फॉर्मूला ध्यान रखिए. ये y1 और y2 के जो फॉर्मूले हैं, दैट इन दोनों में जो रिलेशन है वो ये है, मैं आपको ये बताऊंगी अभी. y2 इज इक्वल टू y1 y2 अंडर रूट 1 plus 8 fr square minus 1. This you have to remember. आप ऐसे समझिए कि जो ये चैनल है, लाइक इसमें देखिए यहाँ पे y1 है, ये y2 है, ये हाइड्रोलिक जंप हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है,
y1 और y2 में जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है. And length of the hydraulic jump, the distance between the front face of the jump to the point on the downstream where the roller terminate and the flow becomes uniform is known as the length of the hydraulic jump. इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट फेस जहां से जिस पॉइंट से जंप स्टार्ट हुआ एंड वेयर द फ्लो बिकम्स यूनिफॉर्म, और उस पॉइंट पे जहां पे जंप हुई और फ्लो पर अपने स्टेबल पॉइंट अपना एक पर्टिकुलर स्मूथ सरफेस हो गया, तो वो जो लेंथ है दैट इज योर एल. आपने जैसे यहाँ ये वाटर फ्लो कर रहा था इस पॉइंट से यहाँ तक, फिर पानी आपको स्मूथ फ्लो करना है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस horizontal distance is known as the L, length of hydraulic jump, and LJ is equals to 6 HJ. That these three formula you have to do. Remember these three: 1, 2, and 3. So length of hydraulic jump is 6 HJ. You just learn this formula and write down it on your notebook. Then एनर्जी लॉस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो आप एक डायग्राम देखिए. सॉरी, दिस इज अ चैनल. ये चैनल था जिसमें वाटर की जो डेप्थ है वो y1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v है. पानी, ये हाइड्रोलिक जंप जोन है, तो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुआ वो डेल्टा E है. यहाँ पे जो एनर्जी थी वो इवन एनर्जी के साथ पानी फ्लो कर रहा था, यहाँ पे E2 एनर्जी आपकी क्या हो गई, कम हो गई है. ठीक है, हाइड्रोलिक जंप होने की वजह से ये V2 और y2. तो इस चैनल का जब शेप और स्लोप चेंज हुआ तो वहां पे एनर्जी डिसिपेशन हुआ, हाइड्रोलिक जंप हुई. ठीक है, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट दिस हाइड्रोलिक जंप. हाइड्रोलिक जंप में जो डेल्टा E है, जो एनर्जी लॉस है, E1 माइनस E2. ठीक है, ये हेड लॉस भी इसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉस या फिर हेड लॉस. जिस हेड के साथ एनर्जी वाटर फ्लो कर रहा था उस एनर्जी के साथ नहीं कर रहा है, तो जो लॉसेस है दैट इज HL. ड्यू टू द टर्बुलेंट फ्लो इन हाइड्रोलिक जंप, डिसिपेशन लॉस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय E1 माइनस E2. एज वी ऑलरेडी स्टडी, अगर हम रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं तो E की वैल्यू, ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, y प्लस q स्क्वायर बाय 2g y. ES is equals to y plus q square upon 2gy square. ठीक है, तो हेड लॉस का फॉर्मूला E1 का फॉर्मूला इसकी टर्म्स में लिख दिया, E2 का लिख दिया. तो इसको सिंपलीफाई जब हमने इस इक्वेशन को किया तो डेल्टा E का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, डेल्टा E है HL. ये भी आपको याद रखना है, y2 माइनस y1 का q अपॉन 4y1 y2. एक पर्टिकुलर चैनल के लिए इसकी बात कर लीजिए. ऐसा कोई चैनल है कि यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है. तो दिस इज द एनर्जी लॉस एनर्जी इक्वेशन फॉर hydraulic jump. So ये यहाँ तक आपको फॉर्मूला को याद रखना है. Okay guys, so this is all about the today's lecture. You may write down this all the critical portion and formula. These are very important. I will start my next lecture from this slide only, and I will tell you the rest of the formula and the numerical. ठीक है, तो आप इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए. इस फॉर्मूले में ये Q क्या है आपका, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, that I already told you in my previous lecture. Small q is equals to q by t. Okay, so thank you very much guys. If you have any problem then you can let me know anytime.